Hello students, today we shall study Supplementary Reader Class 11th English Lesson The Birth, written by A.J. Cronin, presented by S.K. Jain PGT English Jain Vikatni MP. So let's start. Joe Morgan goes to call the doctor. So students, in this beginning of the lesson, students, you will find a person named Joe Morgan. Joe Morgan goes to the doctor's house at midnight. He requests him to go with him to his house at 12 Blaina Terrace. His wife Suzanne was expecting a child. It is their first child after 20 years of their marriage. So आधी रात में जो मॉर्गन, जो कि एक ड्रिलर है, मजदूर है, एक खान में, माइनिंग टाउन में, वह आधी रात को डॉक्टर एंड्रू मैनसन के यहाँ जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरे घर चलिए, क्योंकि उसकी वाइफ सुसेन मॉर्गन माँ बनने वाली थी और शादी के 20 साल बाद यह उनके घर में पहली संतान होगी। माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनली. जो मॉर्गन वाज अ डीलर इन द माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनली. ही वॉज स्ट्रांगली बिल्ट. जो मॉर्गन का शरीर हट्टा कट्टा था, वह एक ड्रिलर था. हिज वॉइस शोड साइंस ऑफ स्ट्रेन. उसकी आवाज़ में तनाव था. ही वॉज वेटिंग एनेक्ससली फॉर डॉक्टर एंड्रू मैनसन. डॉक्टर एंड्रू मैनसन का वह बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था. डॉक्टर रीच्ड एट जोज हाउस. When doctor reached Joe Morgan's house, Joe Morgan did not go upstairs. He asked the doctor to go inside the house and he said, "Doctor, I have full faith in you. I have full trust in you." Mrs. Morgan's bed was upstairs. Doctor found two women beside the patient. And who are these two women? First of these was Mrs. Morgan's mother. She was tall, grey-haired, 70-year-old. And another woman was their midwife. She was stout and elderly. The old woman offered to make a cup of tea for the doctor. She had realized that there must be a period of waiting. डॉक्टर एंड्रू मैनसन जब जो मॉर्गन के घर पहुंचे तो उन्होंने जो मॉर्गन की मिसिस यानी वाइफ के अलावा दो और महिलाओं को वहां देखा. उनमें से एक मिसिस मॉर्गन की मदर थी, जो करीब 70 साल की थी, टॉल ग्रे हेयर्ड थी. इसके अलावा एक दाई मिडवाइफ, जिसको नर्स भी कहा गया है, वह भी वहां थी और वह हट्टी कट्टी और अधिक उम्र की थी. मिसिज मॉर्गन की मदर ने डॉक्टर से कहा कि आपके लिए चाय बनाती हूँ, क्योंकि उसको पता था कि अभी समय लगेगा तो डॉक्टर कहीं चले न जाए. डॉक्टर एंड्रू मैनसन. डॉक्टर एंड्रू drank tea in the kitchen. He knew he could not sleep even for 1 hour if he went home. He knew that the case would demand all his attention. An hour later, he went upstairs again. He noted the progress made. He came down again. He assured the old woman that anesthetic would not harm the mother. डॉक्टर एंड्रू मैनसन ने चाय पी और उनको ये पता था कि यदि वो वापस घर जाएंगे तो 1 घंटे भी नहीं सो पाएंगे और फिर आना पड़ेगा. इसलिए उन्होंने यहीं वेट करने का निश्चय किया और 1 घंटे बाद वह फिर से उसी कमरे में गए जहां मिसेज मॉर्गन थी. उन्होंने चेक किया कि कितना प्रोग्रेस हुआ है और फिर से नीचे आ गए. उन्होंने मिसेज मॉर्गन की मां को आश्वस्त किया कि एनेस्थेटिक से बच्चे को या मां को कोई नुकसान नहीं होगा. एंड्रू थॉट अबाउट क्रिस्टीन. Dr. Andrew Manson thought about 3 cases of unhappy marriage
His thoughts were muddled. So he was thinking about three people. First, Dr. Edward Page. Dr. Edward Page was bound to quarrelsome Broadbent. Second, Danny. Danny was living unhappily apart from his wife. Third, Bramwell. Bramwell was foolishly devoted to a woman who deceived him immorally. But with the image of Christine before him, he could not think that his own marriage would be unhappy. So, Dr. Andrew Manson बैठे बैठे उनके मन में विचार आ रहे थे और उनके सामने तीन उदाहरण थे जिनमें विवाह असफल साबित हुआ था। जैसे कि पहला, डॉक्टर एडवर्ड पेज ब्रॉडबेन से विवाहित थे, लेकिन वह एक झगड़ालू महिला थी। डैनी भी अपनी वाइफ से अलग रह रहा था और वो खुश नहीं था। ब्रैम्बेल एक ऐसी वुमेन के प्रति डिवोटेड था जो कि उसको धोखा दे चुकी थी। लेकिन डॉक्टर एंड्रू मैनसन के सामने क्रिस्टीन का चेहरा आता है जो कि यह आश्वस्त करता है कि उनकी शादी एक खुशहाल जिंदगी वाली रहेगी, उसमें कोई विवाद, तनाव, झगड़ा, दुख नहीं होगा। The child was born lifeless, stillborn. So doctor was there. An hour passed. It was now dawn when the child was born lifeless. तो डॉक्टर ने बच्चे की डिलीवरी में हेल्प की और जब बच्चा जन्म लिया तो उसके शरीर में कोई भी जीवन के चिन्ह नहीं थे। ना ही उसकी सांस चल रही थी, ना उसकी पल्स चल रही थी, ना वो रो रहा था, ना ही उसके शरीर में कोई भी हलचल थी। सो नाउ डॉक्टर हैज़ टू टेक केयर ऑफ टू पर्सन्स। फर्स्ट मिसेज मॉर्गन, सेकंड द चाइल्ड। मिसेज मॉर्गन और चाइल्ड दोनों को डॉक्टर को देखना था। मिसेज मॉर्गन की दशा कैसी थी? शी वाज इन डेस्परेट स्टेट, हर स्ट्रेंथ वाज एबिंग, शी वाज ऑलमोस्ट पल्सलेस। डॉक्टर ने देखा कि मिसेज मॉर्गन बहुत ज़्यादा ख़राब दशा में है और उनकी ताकत घटती जा रही है, उनकी पल्स भी कमज़ोर होती जा रही है। दूसरी तरफ जो बच्चा था, जो न्यू बॉर्न चाइल्ड था, द चाइल्ड वाज बोर्न लाइफलेस, स्टिल फॉर्म। बच्चे का जो शरीर था वह निष्क्रिय था, उसमें कोई पल्स नहीं थी, सांस नहीं ले रहा था, शरीर का कलर वाइट था। He gave the child to the nurse and gave attention to mother who was in desperate state. डॉक्टर ने उस छोटे बच्चे को नर्स को सौंप दिया और मिसेज मॉर्गन को दवा देने के लिए तत्पर हुए जिससे कि उनकी पल्स रेट, स्ट्रेंथ बढ़ सके। मदर सुजैन मॉर्गन। डॉक्टर smashed a glass ampule and injected the medicine. He worked feverishly to restore the soft and weak woman. After a few minutes of quick efforts, her heart strengthened. He saw that he could safely leave her. डॉक्टर ने ग्लास एम्प्यूल तोड़ा, उसमें से दवा इंजेक्शन मिली और इंजेक्शन अप्लाई किया और डॉक्टर ने बहुत जल्दी काम किया, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, जिससे कि उनको मिसेज मॉर्गन की ताकत बढ़े और वह खतरे से बाहर आए। कुछ समय के बाद मिसेज मॉर्गन की कंडीशन नॉर्मल हो गई और हर हार्ट स्ट्रेंथेंड। अब डॉक्टर मिसेज मॉर्गन को छोड़ सकते थे और बच्चे पे ध्यान दे सकते थे। बच्चे को कैसे डॉक्टर ने बचाया? हाउ द डॉक्टर सेव द चाइल्ड, how the child was restored, we will see in the next video. Till then, continue learning, continue studying. Have a nice day.